we got Supreme Court judgment in favor of Gujarat professors, and they have started getting checks. Area calculation may take some time, but they have started getting their check. Though a review petition has been filed by the Gujarat government before Supreme Court, but we filed several content issues in Gujarat before Gujarat High Court, and with pressure from Gujarat High Court, we have started receiving our pension checks. As far as Delhi University is concerned, the the judgment was there on 10th of May, a few days ago, and our Executive Council of Delhi University is going to meet on 30th, and in all probability, the formalities will be completed, and by the end of June, I believe, pension should start, or at the most in the first week of July. Though area calculation may take a little time, does not matter, but it will be a big relief when the pension is started to Delhi University employees. I am using the word employees because some of the non-teaching employees are also there. So teaching as well as non-teaching employees by the first week of June. There is no smile on the face of Mr. Guha, Rupendra Guha. Your case is there with me. Don't worry. You will get pension. And university will get pension. Don't worry. So, now as far as KVS teachers are concerned, we have already submitted detailed memorandum, two memorandums to Kendriya Vidyalaya Commissioner, Deputy Commissioner and all the authorities and the Ministry of School Education. And as per their practice, they don't reply, but that does not matter. Shortly, we are going to file appropriate petition before, we call it application before CAT, Principal Bench, New Delhi, on behalf of 15 persons. And there is a request from some more teachers, 8 more teachers, so we will take them in the other batch. So whether it is the case of Gujarat University or Delhi University or Kendriya Vidyalaya Sangathan, I am absolutely confident that all of you will get pension. So let me introduce the, yes, are you saying something, Mr. Kumar? Let me introduce the topic today with some requests. You may say instructions, I say requests. After our preliminary introduction, let us say 2 minutes from now, we will switch off our mobile phones, and we will not use our phones, this communication system on our laptop also. So we will keep them in silent mode so that there is no disturbance. Then whenever you have a query, you may use your chat box. You may write the query to me and I will communicate to the speaker, Dr. S.V. Rathod. And you may also raise your hand if you feel like this. You can also raise your hand, but please don't interrupt when the speaker is making presentation. That will be better. So it may be either virtual raising of hand on the system, or you may raise physically like this. So we will notice it and do whatever is possible. During presentation, in our last presentation, we noticed that some of the family members of the participants were speaking something to the participant. Let it be avoided. Let all of us request our family members close the doors of your rooms and request them not to disturb during our discussion, which may range from 30 to 45 minutes or maximum 1 hour, not more than that. And at the end of the presentation by Dr. S.V. Rathod, you may, it will be open, you may then switch on your speaking system, speakers and all that, and raise your queries at the end. So let us start. Today's topic, friends, is about commutation of pension. But before that, I just give you one information which is necessary, which has come to my notice only yesterday. Somehow it escaped my attention. I had posted a video as well as my detailed 4-page note on family pension yesterday. It was based upon CCS pension rules 1972. 1972. But I have now come to know that
there is a revised CCS pension rules 2021. So I am studying it today, and if there are some major changes anywhere, I'll uh, I will post an addendum to whatever I had written yesterday. Typically, I think major change will not be there, but in case there is some uh, change which is material to you, I will post it today. Let us come to today's topic. Dr. S.B. Rathore is a well-known figure as far as tax uh, aspects are concerned. He was my colleague at Shamlal College, Delhi University, and incidentally, Dr. Duper is also there. He was also my colleague. So all the three of us who are quite popular now belong to a notorious college, that is Shamlal College, which at one time was notorious for its all sorts of problems in the university. But now it has improved a lot. Perhaps a little bit, there was a little bit of our contribution also. So all the three of us belong to Shamlal College, Shahadra, uh, which is now an improved college. And we have been on the WhatsApp groups talking to all of you. All of you know us. Dr. Rathore, commutation part, which is very important because we are going to get a good amount of our pension arrears. And in case definitely something happens to any one of us, then our uh, spouse, children, in some cases parents, brothers and sisters also in some cases, so they are entitled to family pension. So we have to understand the intricacies of this commutation part, that is whether to go for commutation of our pension or not, because 40% of it will be reduced, our pension amount will be reduced by 40% if we opt for commutation, and we will get uh, some amount in lump sum at this stage. But then that deducted pension will continue for 15 years. Don't forget that. So will explain to us whether at this age of our life we should go for commutation or not. Broadly speaking, I understand at present, before listening to Dr. Rathore, that if you are likely to live for more than 12 years, that is my rough calculation, guide me. If you are having a good health and uh, you expect yourself to be there in this world with us, for with us I am using because my plan is for 20 years. So if you plan to live for 12 years or more, then you may not go for commutation because the interest charged by the government on commutation is too much. But if your health is not good and if you are not like to live for 10, 12 years, let us say, then you may take commuted value of your pension and enjoy with your family, with your children, grandchildren. And when you leave this world, leave the money for them and let the government take care of its own business. So I invite Dr. Rathore, who has been a great teacher, a wonderful teacher like Dr. Dhuper, and he has specialized in tax, of which I understand very little. But what I and Dr. Rathore does not understand. So we have come together and we supplement each other's efforts, and we are here before you. I invite Dr. Rathore to start, and please keep your system on silent mode. Okay, please start. Thank you. थैंक यू वेरी मच गुप्ता जी और नमस्कार टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और मेरा लेक्चर बहुत सिंपल भाषा में होगा, कोई टेक्निकल मैं उसमें इस्तेमाल नहीं कर रहा। और जैसा गुप्ता जी बता रहे थे, दोपहर साहब, मैं और गुप्ता जी हम तीनों ही कॉमर्स डिपार्टमेंट में रहे, काफ़ी टाइम रहे। और मेरी रिटायरमेंट जो है अभी दिसंबर 19 में हो गई थी। गुप्ता जी की अक्टूबर 16 में हुई। गुप्ता जी की कैटेगरी 1 है, मेरी कैटेगरी 2 है। और धूपर साहब तो हमें काफ़ी पहले ही कॉलेज से रिज़ाइन करके चले गए थे, उनको बाकायदा पेंशन मिल रही है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते रहते हैं और अपनी नॉलेज शेयर करते रहते हैं। पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है,
इससे पहले आपकी पेंशन निकालने से पहले आपकी बेसिक कितनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कम्यूटेशन कैसे हम निकालेंगे, एक कम्यूटेशन का फैक्टर होता है, वो क्या है, और कम्यूटेशन करवाएं या न करवाएं, ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। उसमें डिपेंड करता है कि आपकी अपनी हेल्थ कैसी है, आपकी अपनी इमीडिएट नीड्स क्या हैं। आपको जैसे गुप्ता जी का विचार यहाँ वर्ल्ड में 20 साल का रहने का है, मेरा भी लगभग उससे ज़्यादा ही चल रहा है अभी। तो अभी मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं रिटायर हो गया हूँ। मैं रिटायर हुआ था दिसंबर 19 में, लेकिन अभी भी मेरी एफिशिएंसी अभी 45 प्लस ही चल रही है, और उसी तरीके से मेरे वर्किंग्स होते हैं। मेरा नाइट में काम करूं, दिन में काम करूं, मेरे लिए 24 आवर्स एक जैसे हैं। कभी मैं रेस्ट कर लेता हूं और कभी काम कर लेता हूं। गुप्ता जी रात को बैठे होते हैं यहाँ के हिसाब से 3 बजे, और हम आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो मैं आधा अमेरिका में, आधा इंग्लैंड में, और बाकी रिमेनिंग में इंडिया में। मेरे खाने का पीने का टाइम कोई फिक्स नहीं है कि आप उसी टाइम पर खाएंगे, उसी टाइम पर पिएंगे। आपको जब 24 घंटे आपके पास हैं, कभी मर्जी खाइए, कभी मर्जी पीजिए। आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते हुए आप अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हैं, ये मेरा कहना है। तो मैं अब आपको प्रेजेंट करूंगा कि मेरी कैलकुलेशंस कैसे मुझे ये बता रही हैं कि मैं कम्यूटेशन लूँ या ना लूँ। और मेरी कैलकुलेशंस ऑलरेडी मैंने, जो भी मेंबर्स थे, जिन लोगों ने मुझे कहा, उन्होंने मुझे लास्ट ड्रॉन सैलरी बताई है, उन्होंने मुझे डेट ऑफ रिटायरमेंट बताया। तो मैंने उन सब की कैलकुलेशंस, कितनी उनको पेंशन मिलेगी, कितने पेंशन के एरियर्स मिलेंगे, कितना कम्यूटेशन अमाउंट मिलेगा, ये मैं सबको उनके व्हाट्सएप पर भेज चुका हूँ। अब मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा स्क्रीन मैं शेयर करूँगा। ये गुप्ता जी स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी जी, आ रहा है। ये बीच में जो ज्वाइन करने के लिए होता है उसमें परमिशन देनी होती है। ये देखिए, ये मैं अपना ही केस लेके चल रहा हूं। पहले मेरी बेसिक सैलरी थी लास्ट में 7 पे कमीशन में, ग्रेड पे नहीं था। लास्ट बेसिक सैलरी वॉज 2,17,100। तो पेंशन जो होगी, वो इसका हाफ होगी, 108,550। जब मैं कम्यूट कराऊंगा तो मैक्सिमम कम्यूटेशन मेरी हो सकती है 40%, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो 1,08,550 मेरा पेंशन फिक्स हुआ, मैक्सिमम कम्यूटेशन मेरी 40% हो गई, तो 65,130 रह गया पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन। और एक कम्यूटेशन फैक्टर होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी एज क्या है, उसका नेक्स्ट बर्थडे। और ये देखिए, ये जैसे जैसे एज बढ़ती है ये फैक्टर लगातार चेंज होता है। जब आप 65 पर रिटायर होते हैं तो कम्यूटेशन फैक्टर लिया जाता है 66, विच इज 7.591। 67 की एज में 67th बर्थडे पर होगा 7.431, 68 पर 7.262। मैं रिटायर हुआ दिसंबर 19 को, तो 66 हो गया, 20 में 67 हो गया, 21 के एंड पर 68 हो गया, अभी 22 का एंड नहीं आया, तो इट इज फैक्टर इज 7.262। ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और कम्यूटेशन का अमाउंट निकल आया इसका 40%, 1,08,550 का 40% मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 7,262। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 108
550 का 40%, ये आ गया 43,420। 43,420 मेरी पेंशन कम होनी शुरू हो जाएगी यदि मैं पेंशन कंपटीशन और पेंशन ऑप्ट करता हूं तो। अब कंपटीशन अमाउंट कैसे निकला? 43,420 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई कम्यूटेशन फैक्टर, जो मैंने भी आपको बताया नेक्स्ट बर्थडे 7.262, और ये अमाउंट आ जाता है 37,83,792। अमाउंट आ जाता है 37,83,792। यदि मुझे कम्यूटेशन अमाउंट मिल गया 38 लाख के आसपास, तो मेरी पेंशन रह जाएगी 65,130 प्लस डीए, और डीए होता है पूरा अमाउंट। डीए का परसेंटेज यदि मैं मान के चलूं 37% इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो मेरी पेंशन हो जाएगी, पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन, ये देखिए डीए का अमाउंट हो जाएगा 37 मल्टीप्लाइड बाई पूरी पेंशन, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखने वाली बात है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो आपका डीए का अमाउंट होगा, मैंने कम्यूट करा ली, मुझे अमाउंट मिल गया 37,80,792, लेकिन डीए 37%, और वो मेरी पूरी पेंशन पर होगा 1,08,550। तो मेरी टोटल पेंशन कितनी होगी मंथली? 65,130 आफ्टर कम्यूटेशन, और 40,164 इज माई डीए। मेरी पेंशन हो गई 105,294। दिस विल बी आफ्टर कम्यूटेशन। और यदि मैं कम्यूट नहीं कराऊंगा तो 108,550 उसका 37% मैं जुलाई की मंथ का चल रहा हूं, वो मेरी पेंशन हो जाएगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। और वो कितनी हो जाएगी? 148,714। यदि मैं कम्यूट नहीं कराता हूं और कम्यूट करा लेता हूं तो मुझे मिलेगी 105,294। इसका मतलब ये मेरा जो अमाउंट है 43,420 का, ये मेरा कम होना शुरू हो गया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इट वाज 2,17,100। पेंशन हो गई 50%, 108,550। मैक्सिमम कम्यूटेशन 40%, और कम्यूटेशन के बाद रह गया मेरा 65,130, और कम्यूटेशन अमाउंट हो गया 43,420। कम्यूटेशन फैक्टर नेक्स्ट बर्थडे 7.262, और ये कम्यूटेशन फैक्टर अप टू 81 ईयर्स तक दे रखा है। इसका मतलब आप कम्यूटेशन 81 की एज पर भी करवा सकते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये कम्यूटेशन फैक्टर लगातार कम हो रहा है। तो यहां पर जो अमाउंट आया 43,420 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 7.262 मीन्स कंप्यूटेशन फैक्टर अमाउंट आ गया 38 लाख के आसपास। या तो मैं 38 लाख रुपीज एक मुश्त रकम ले लूं, या अपनी पेंशन को कम कर लूं बाई ₹43,420। यदि मैं कम्यूट नहीं कराता देन आई विल गेट पेंशन, मंथली पेंशन ऑफ ₹1,48,704। और यदि कम्यूट करा लेता हूं तो मुझे पेंशन मिलेगी 105,294। मेरी पेंशन रिड्यूस हो जाएगी बाई 43,420। गुप्ता जी, इस टाइम तक यदि कोई क्वेरी है तो आप देख लें जरा। Yes, friends, any query by now on the discussion? कैलकुलेशन पार्ट। The calculation part? Anyhow, please proceed further. अब मुझे डिसाइड ये करना है कि क्या मैं 38 लाख रुपीस आज ले लूं और 15 साल के लिए 43,420 रुपीस मैं सेक्रीफाइस कर दूं, या मैं पूरे के पूरे
या पूरे के पूरे मैं अपनी पेंशन लेता रहूं 1,48,000। अब उसके लिए मैंने डिफरेंट केसेस किए। ये जो आप टेबल मेरी देख रहे हैं, ये मैंने रेफरेंस लिखा हुआ अपने लिए। मोतीलाल नेहरू कॉलेज का कोई केस है, उनकी एज 65 पे भी रिटायर हुए, 66 उनका बर्थडे हम ले रहे हैं, 43,420 उनकी पेंशन है। ये मेरी एम इकोनॉमिक्स में थी जब मैं एमकॉम कर रहा था। ये अमाउंट आया इनका कम्यूटेशन का अमाउंट। अब यदि ये जो 38 लाख का अमाउंट आया, इसको मैं डिवाइड कर दूं 43,420 से, तो ये 89.17 मंथ्स के अंदर अमाउंट खत्म हो जाता है। मेरा कहना है कि मैं इस पैसे को 38 लाख विच इज टैक्स फ्री, कम्यूटेशन का अमाउंट पर कोई टैक्स लगने नहीं जा रहा। लेकिन आपको एक काम करना है, जब आप ITR फाइल करेंगे तो आपको वहां लिखना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि आपने लिख दिया स्टेट गवर्नमेंट, आपने लिख दिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, आपने लिख दिया एनी अदर, फिर आपको इनकम टैक्स ऑफिस से नोटिस आ जाएगा। कॉलेज आपका टैक्स नहीं काटेगा इस कम्यूटेशन पर। हम सब लोग फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी आर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर आपको अमाउंट मिला 38,71,000। 89 मंथ्स में वो पैसा पूरा हो गया। मैंने इस अमाउंट को 43,420 से डिवाइड कर दिया और मंथ्स आ गए 89। मतलब 7 साल 5 महीने में वो अमाउंट मेरा ज़ीरो हो गया। अब जो मैं अमाउंट यहाँ पर मुझे 38 लाख मिला, मैं घर पर तो रखूँगा नहीं, मैं इसको रखूँगा बैंक में। और मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग की मैं बात करूँ तो 4% मिलेगा, और उस पर जो भी अमाउंट होगा उस पर TDS भी होगा। और सेविंग पे तो TDS नहीं होता, लेकिन टैक्स का तो मुझे देना ही होगा। तो मैं मानकर चलूँ 2.75 आफ्टर टैक्स मैं ये अमाउंट ले रहा हूँ 4% के हिसाब से। उसका मैंने टैक्स का फैक्टर निकाल दिया, क्योंकि मुझे उस सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पर टैक्स भी देना है। तो मैंने इफेक्टिव इंटरेस्ट ले लिया अपने लिए 2.75%, और ये सारी कैलकुलेशंस उससे लिंक है। होता क्या है कि 38 लाख रुपीस मैंने जमा करवाया, उसके बाद मैंने 43,420 निकाल लिया। अब जो रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा उस पर तो मुझे इंटरेस्ट मिलना है ना। ये देखिए, ये मैंने कैलकुलेशंस करके, ये मैंने अपनी कैलकुलेशंस की हैं 3783 वाली, ये मेरी अपनी कैलकुलेशंस 37,83,792। मैंने ये मानकर चला कि मुझे जुलाई में कम्यूटेशन का अमाउंट मिल जाएगा 37,83,792, और मैंने 43,420 विड्रॉ कर लिया। अब मेरे पास रह गया अमाउंट 37,40,372। इसका मुझे इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट यहाँ पर कर दिया। मैंने फार्मूला लगाया हुआ है 37,40,372 पर एक महीने का इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट आफ्टर टैक्स का फैक्टर लेते हुए 2.75, और वो अमाउंट हो जाता है 8572। क्लोजिंग बैलेंस रह गया 37,48,944। इसके बाद ये अगस्त के महीने में बैलेंस आ गया सेम अमाउंट, ये मैंने फिर विड्रॉ कर लिया, ये मैंने फिर मेरे पास रह गया आफ्टर विड्रॉल, और फिर अगली बार इंटरेस्ट आया 8492। क्लोजिंग बैलेंस रह गया 37,14,016। इसका मतलब मुझे हर महीने जो इंटरेस्ट मिला, SB राठौर 67 की एज, ये उसकी पेंशन, ये टोटल अमाउंट 87 मंथ्स के अंदर पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन इस 96 मंथ्स के दौरान, 8 साल के दौरान मुझे 3,77,821 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको मैंने अगेन 43,420 से डिवाइड किया। अमाउंट इंटर मंथ आ गए 8.70। इसका मतलब ये हुआ 96 मंथ तक मेरा वो अमाउंट चलता रहेगा। अब मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरे सील नंबर और ये मंथ, ये धीरे धीरे क्लोजिंग बैलेंस कम होता जा रहा है। हर महीने 43,420 विड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं मानकर चल रहा हूँ इंटरेस्ट 2.75% इफेक्टिव टैक्स के बाद। और ये अमाउंट 96 मंथ्स के बाद यहाँ पर देखिए अमाउंट खत्म हो गया 3174। इसका मतलब ये हुआ
मैंने कॉलेज से पैसा लेकर उसको जमा करा दिया अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, जिसमें मुझे मिल रहा है इंटरेस्ट 2.75% इफेक्टिव। तो मेरा वो पैसा 96 मंथ्स के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि मेरा इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर, यदि मैं 96 मंथ के बाद अलाइव रहता हूँ तो मुझे कम्यूटेशन नहीं करानी चाहिए, क्योंकि 8 साल तक तो मेरा पैसा आ गया मेरे पास, लेकिन बाकी आने वाले 7 सालों में मेरी पेंशन कम हो जाएगी बाई ₹43,420। यदि यहाँ 96 मंथ है, यदि मान लीजिए मेरी डेथ हो गई 2 साल के बाद, तो मेरे फैमिली को 29,25,000 रुपीज़ मिल जाएंगे और मेरी फैमिली को 43,420 से कोई इफेक्ट नहीं आएगा कि मैंने कम्यूट कराया था या नहीं कराया था। यदि मेरी डेथ होती है 5 साल के बाद, 60 मंथ्स के बाद, 5 साल के बाद, तब भी मेरे पास उस बैंक में बैलेंस होगा 15,45,068। और यदि डेथ होती है 6 साल के बाद आज से, तो 10,59,230। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि मेरा प्रोग्राम 8 ईयर से ज़्यादा का है, यदि मेरा प्रोग्राम जी हाँ जिंदा रहने का, और यदि मेरा प्रोग्राम यहाँ पर रहने का है 96 मंथ्स से ज़्यादा, तो मुझे कम्यूट नहीं करानी चाहिए। और यदि मेरी हेल्थ कैसी है, मेरे अपना इमीडिएट नीड क्या है, कई बार ये भी होता है कि आपको पैसे की नीड है, आपको 38 लाख रुपए बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी पेंशन से, जो मेरी 1,05,000 रुपये, उससे पेंशन से काम चल जाएगा, आपको बच्चों को पैसा देना है, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप कम्यूटेशन ले सकते हैं। लेकिन मेरी इसमें सोच थोड़ी सी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। गुप्ता जी के साथ मैंने शेयर किया था। मैं कहता हूँ, जो मुझे गुड फील फैक्टर आएगा ये कहने में कि मेरी पेंशन का अमाउंट 148,714 है, वो गुड फील फैक्टर नहीं आएगा यदि मेरी पेंशन 1,05,294 है। मुझे बहुत अच्छा फील होता था जब मैं कहता था कि मेरी जो सैलरी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की सैलरी से ज़्यादा है। मैं गुड फील को बड़ा इंपॉर्टेंट कहता हूँ। और हो सकता है कि मैं अकोमोडेशन करा लूँ बच्चे को या डॉटर इन लॉ को, लड़की को, दामाद को। मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, उन्होंने मुझे पुचकार कर, अपनी नीड्स दिखाकर मुझसे पैसा ले लिया और 15 साल के लिए मेरी पेंशन कम हो गई 43,420। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा एक गुड फील फैक्टर को छोड़ना कि मेरी पेंशन 43,000 से कम हो जाए। दिस इज़ माई थिंकिंग, माई एजम्पशंस, माई थॉट्स। अब मैं बात करता हूँ जो लोग 75 ईयर्स के हैं, 75 ईयर्स के हैं और 6 पे कमीशन के हैं, तो उनकी पेंशन का अमाउंट होगा डेफिनेटली कम है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कम थी, 67,000 थी या 68,000 थी। मैं यहाँ पर एक फिगर ले लेता हूँ 19, ये देखिए यहाँ पर जो पेंशन है इनकी 38,500 और ये 38,500 कैसे निकली? इनकी बेसिक सैलरी थी 67,000, ये प्रोफेसर हैं 10,000 ग्रेड पे, 77,000 हो गई और उसका आधा 38,500। तो हमने पेंशन लिख दी 38,500। अब इसको कम्यूट हमने कैसे किया? 38,500 40% हो गया 15,400, फैक्टर लगा, ये फैक्टर लगा 74 का 6.085, इनको अमाउंट मिलेगा 11,24,508। ये देखिए, ये 73 की एज कंप्लीट कर गए, ये पेंशन इनकी 15,400 और अमाउंट मिलेगा इनको 11,24,508। यदि ये 15,400 निकालना शुरू करें हर महीने तो इनका अमाउंट 73 मंथ्स के अंदर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस 73 मंथ्स के दौरान इनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 2.75% के हिसाब से 94,000। तो 6 महीने इनके और निकल जाते हैं, मतलब 79 मंथ्स तक इनके पास वो पैसा बना रहेगा। लेकिन 79 मंथ्स के बाद ये रहती हैं 9 साल, 9 साल मीन्स 109 मंथ्स,
तो इनको नुकसान हो जाएगा। हाँ, यदि मैं इंटरेस्ट रेट चेंज कर दूँ, मैंने इंटरेस्ट रेट यहाँ कर दिया, मान लीजिए आपको मिलता है 6% इंटरेस्ट, 2% गवर्नमेंट आपसे लेगी, तो रह जाएगा 4%। मेरी कैलकुलेशंस बदल जाती हैं, मेरी कैलकुलेशंस मेरे लिए हो जाती हैं 100 महीने। ये सब मैंने एक्सेल में कन्वर्ट कर रखा है और इनके लिए हो जाती हैं 82 मंथ्स। और मुझे लगता नहीं कि 9% से ज़्यादा कभी आप ज़्यादा ब्याज कहीं भी कमा सकते हैं। मैंने इसको ले लिया 6%, 9% इंटरेस्ट, 3% गवर्नमेंट खा गई मेरा इनकम टैक्स में, मैंने इफेक्टिव लिया 6% और 6% में मेरा टेन्योर हो गया 106 मंथ। इसका मतलब 9 साल से कम। गुप्ता जी का प्रोग्राम 20 साल, मेरा भी वही प्रोग्राम है, तो मैं बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं कराऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, मुझे एक जो गुड फील फैक्टर करना है 1,48,000 का, वो मुझे अच्छा लगता है। अब मैं 106 मंथ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरी पेंशन की बात हो रही है और ये देखिए, ये अमाउंट मान लीजिए 4 साल के अंदर मेरा तीसरा, चौथा, पाँचवा हो गया, तो 24,46,000 मेरे बैंक में पड़े होंगे 6% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद। और यदि मैं चला गया 8 साल के बाद, तब भी 7,47,700 मेरे अकाउंट में पड़े होंगे। और 106 मंथ्स के बाद मैंने इसको आगे फिर चेंज करना है, तो मेरा वो अमाउंट 0 हो जाएगा। और यदि मैं इसको लेता हूँ इफेक्टिव रेट 4%, तो ये मेरा आता है 100 मंथ्स, और ये देखिए ये 100 मंथ्स पर ख़त्म हो जाएगा। ये 100 मंथ्स पर ख़त्म हो गया। यहाँ पर ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट चलेगा, यहाँ पर 30,000 रह गया, तो माइनस की फिगर होने का मतलब ही नहीं, मतलब 100 मंथ्स के बाद ये पैसा लगभग ख़त्म हो गया। और यदि आपकी एज 75 है, 6 पे कमीशन आप रिटायर हुए, आपकी पेंशन 12,516, जो कंपटीशन का अमाउंट है, कंपटीशन का अमाउंट 40%, ये आपको एक मुश्त रकम मिली 12,516 सेक्रीफाइस करने के लिए। 67 मंथ में आपका अमाउंट खत्म हो गया, इंटरेस्ट मिला 96,000, तो आपको 76 महीने के बाद आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये गुप्ता जी मेरी सबमिशन, अब आप डिस्कशन करवा सकते हैं। You may use your lines now, and let me make a few observations on the basis of what Dr. Rathod has explained, and then you will please raise your questions. मोटी तौर पे कहानी ये है कि अगर हमारी अभी हेल्थ अच्छी है and our life expectancy is, let us say, 10 years or more, I was saying 12, let us say 10 years or more, तो फिर हमें कम्यूट कराने में फायदा नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट काफी देना पड़ेगा। We will have to pay a lot of interest to the government. But if our health is not good, or if our money requirement is urgent and we need some money at the earliest, then we will go for commutation and use that money in whatever way we feel like, and enjoy our reduced pension. That is the idea. Basic बात ये है कि we have to see our individual circumstances, our health position, our money requirement, our other requirements of the family, and also our capacity whether we will able to retain that money invested. That is a very big question. Because normally what happens when we take cumulative value of, let us say, 35 lakh, 30 lakh or 40 lakh, as the case may be, then normally we use it for daughter's marriage, for construction of the house, for using of the son, house there, and that money goes from our hand. And once it is gone, then there is hardly any way of recovering that money. You might have to heard the case of what was that? Which company was it? Rathod, will you remind me? Where the father is out, a very big company. He handed over everything to his son, and now the father is living in Rangit. Raymond's? What is that? I am forgetting the name, but it's a very famous case where the father handed over everything to his son, and now the son does not allow him to enter that Raymond, yes. Raymond company. So, friends, what Mr. Rathod
and myself are suggesting is this: if you are holding good, if your health is good, and if you feel that you are likely to survive for more than 10 years, then it is better not to go for commutation. But if our health is not good, or if our money requirement is urgent, then we will go for commutation. Now, life is uncertain, that is true. We may plan something today, but we are not absolutely sure as to what will happen, because two of my colleagues, one Mr. Gulati and Mr. Mandar from my college, they expired within 2 years of their retirement. So we do not know this thing, but we can only expect and hope to maintain good health. One more suggestion, and last suggestion from me, that if you do not go for commutation, you will have more and use a part of it for your health, because most of us do not care for our health. That is the main problem in our society. That is, we assume that it is in the hands of God. No. What I feel that let us try to devote some time and money on our health, on our yoga or on our medicine, so whatever we feel like, but maintain good health. And if we maintain good health, then most of us are likely to live for more than 10 years. And if our expectancy is for more than 10 years, then it's not useful financially to go for commutation. Now your questions, please, I invite you. You make your observation. Yes, Asha ji. Yes. Yeah, my question is, sir, अगर ये हमने जो टैक्स रिलीफ मिलता है म्यूटेड अमाउंट पर उसको कंसिडर नहीं किया है कैलकुलेशंस में पेंशन कम्यूटेड अमाउंट पर जो टैक्स रिलीफ है लाइक वी आर नॉट पेइंग टैक्स ऑन दैट क्या लायबिलिटी बनती है Tax relief should also be counted. Consider the benefit of the Yes. conversation of it. जो हमें अमाउंट मिला 37 लाख वो टैक्स के दायरे से बाहर है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना। उस 37 लाख को मैंने फिर डिपॉजिट करवा दिया और उसका जो इंटरेस्ट आया उसको मैंने टैक्स में ले लिया। 37 लाख जो मुझे मिला कंप्यूटेशन के बाद, उस अमाउंट को मैंने टैक्स नहीं दिया, डेट वॉज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। उस 37 लाख पर जो इंटरेस्ट कमाऊंगा उसका मैंने अभी आपको दिखाया 4% का मैंने लिया 2.75%, 6% की जगह लिया मैंने 4% और 9% की जगह लिया मैंने 6%, मैंने 1/3 टैक्स उसमें से कम कर दिया। अब जो आपकी पेंशन है, यदि आप कम पेंशन लेते हैं तो वो तो 43,420 मेरे वाले केस में टैक्स होगी, मेरी 1,05,000 भी टैक्सेबल है और 1,48,000 भी है। लेकिन जो आप पैसा घर ले जाएंगे उस पैसे पर मैंने जो इंटरेस्ट बताया आपको उसको तो टैक्स किया है ना अभी, तो दोनों में कहाँ फ़र्क है? मुझे समझ में नहीं आया कि आप कौन से पैसे की बात कर रहे हैं। जो मुझे 38 लाख टैक्स फ्री के बाद मिला उसको मैंने इन्वेस्ट किया, उस पर जो इंटरेस्ट कमाया उस पर 1/3 टैक्स दे दिया, और जो मुझे पेंशन मिलेगी पेंशन पर कम्यूटेड या नॉन कम्यूटेड वो तो मैं टैक्स दूंगा ही दूंगा। यदि मुझे 43,000 और इनकम मिल गई वो भी टैक्सेबल है, और जो मैंने इंटरेस्ट कमाया 37 लाख पर, जो मैंने 37 लाख को डिपॉजिट करवा दिया बैंक के अंदर 6% पर, 4% पर, 9% पर, उसमें मैंने 1/3 टैक्स लगाया तो है। मोटे तौर पे आप ये समझिए, रेकॉर्ड साहब ने जो अपनी कैलकुलेशंस की हैं, वो टैक्स एंगल लेने के बाद अगर हम कम्यूट कराते हैं तो वो पैसा अगर हम किसी भी तरह से इन्वेस्ट करते हैं एंड वी आर एबल टू रिटेन इट, तो लगभग 8-9 साल वो चल जाएगा जो कम्यूटेड है। तो इसलिए मैंने मोटे तौर पे ये सजेशन दिया कि अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 इयर्स से ज़्यादा है, 10 इयर्स और मोर, देन डोंट गो फॉर कम्यूटेशन, एंजॉय योर मनी। एक मैंने वीडियो भी शेयर किया था अभी कुछ समय पहले, आप जोड़ते रहे और उसको यूज नहीं कर पाए, उससे कोई फायदा नहीं है। बिकॉज whatever extra income you are getting every month, by not getting commuted, आपको साइकोलॉजिकल भी लगेगा कि भाई मेरा 1.25 लाख रुपया मेरा आ रहा है, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन द चिल्ड्रन, क्योंकि आजकल चिल्ड्रन पे डिपेंडेंट होना भी थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये आंसर जो कि ज़्यादा पेंशन लेंगे तो आपको बच्चे भी ज़्यादा सेवा करेंगे, बहू भी ज़्यादा सेवा करेगी, और अगर पैसे वैसे कम होंगे तो बहू फिर दूसरी तरह से सेवा कर देगी आपकी। तो पता है कि बाउंड्री का 100 लाख रुपया आ रहा है,
सुबह होगी, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा, और बच्चों से कहेंगे दादा दादी की खूब सेवा करो, हैं? तो ये पूरा मोटा कैलकुलेशन है कि अगर 10 साल से ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की, वो आपका अपना अपना डिसीजन है, तो इट इज़ नॉट बेटर टू गो फॉर कम्युनिकेशन। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम है, एज को ध्यान में रखते हुए, या अर्जेंट नीड है, या कोई और ऐसा कारण है कि आपको जल्दी पैसा चाहिए, तो फिर बात फिर आप कम्युनिकेशन करा सकते। फाइनेंशियली फायदेमंद नहीं है अगर आप 10 साल से ज़्यादा जीवित रहते हैं। गुप्ता जी की बात में मैं ऐड करते हुए कहता हूं, जो पैसा आपको एक मुश्त रकम मिल गया 38 लाख रुपीस, सर बच्चे आजकल इतने तेज हैं, इनकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट चलती रहेगी। किसी को इंडस्ट्री लगानी है, किसी को दुकान खोलनी है, किसी को नर्सिंग होम बनाना है, किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो आपका 38 लाख रुपीस चला गया। अब तो आपको पेंशन राठौर साहब आपको पढ़ा लेंगे, आप खुशी खुशी दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मजबूरी है। खुशी खुशी देने के बाद भी फिर माथा पकड़ के बैठ जाएंगे और कोई रास्ता नहीं होगा, वापिस लेने का कोई रास्ता नहीं होगा आपके पास। सर 38 लाख रुपीस मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, किसी ना किसी तरीके से मुझे डर बना रहेगा, कोई ना कोई घर में इमरजेंसी आती रहेगी और वो पैसा मेरे हाथ से चला जाएगा।